Hello students. So today we are going to get to know about SWOT analysis. तो आज हम मैं ये नहीं बोलूँगी we are going to study. We are not actually studying. It's a practical topic and you have to apply it in your daily life. So today we are going to know about the topic SWOT analysis. SWOT stands for strength, weaknesses, opportunities and threats. The full form of SWOT is S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threats. It is called SWOT analysis. Okay, so this was first devised as a business tool in 1960s by business icons Edmund P. Learned, C. Ronald Kristen and Kenneth Andrews and William D. Guth. So personal SWOT analysis is a tool to evaluate the past, present and the future position of yourself. Okay, so let's moving on to the topic SWOT analysis. So SWOT analysis, you must think about that it is made for business people and it is not for you. So that is not correct. So if you are considering to take your SWOT analysis, you can get much benefits from that. So strengths, if you are writing down the strengths, so those are the areas where you have an advantage over others. Okay, this is it will be your internal checking. Okay, so or you possess some unique traits than other. There are some unique traits that you have than other. The areas in which you have advantages over other. Okay, so coming on to the next, weaknesses. Weaknesses are those areas where you may be weaker than other and may find that others can do much better than you. So those are weaker areas. That is internal. Okay, so now coming on to the opportunities. Opportunities are the possibilities that you can take advantage of to help you achieve your goals and ambitions. आपकी वो possibilities are those things that from you can take advantage to become something in your life, to chase your dreams. Okay, so threats now comes threats. These are also external, just like opportunities are external. They are external influence on you. So threats are also an external influence. These are the things that may prevent you from achieving your goals. So आपकी जो threats होती हैं वो weakness से ही आती हैं और जो strengths होती हैं वो opportunities से ही आती हैं. So basically वही बात होती है कि आप इससे इंटरलिंक्ड हैं आपस में, बट फिर भी थोड़ी सी अलग हैं. ये एक दूसरे से आती हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से आती हैं आपकी, या इंटरनल बनती है, या इंटरनल इन्फ्लुएंस की वजह से आपके एक्सटर्नल मूड में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आता है. ओके, सो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज. अगर आप इन चारों चीज़ों को समझ के आप इसको फिल आउट करेंगे इस एक्टिविटी को, तो आपको पता पड़ेगा कि कितना आप में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का. सो नाउ एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के एक साइड बैठ जाइए, सोचें. 30 मिनट्स तो आप अपनी लाइफ में निकाल ही सकते हैं अपने लिए, तो बैठ के उस चीज़ के बारे में सोचिए. एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपका ये, तो आपको आउटपुट मिलेगा जो वो आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकता है. ओके, आपको अपनी इनर सेल्फ से कंसल्ट करना है. सो आप ये एक्सरसाइज क्या है, आपका पर्पस देखने के लिए है कि 4 इजी स्टेप में आपको अपना पेन पेपर लेके या फिर वर्ड प्रोसेसर, एनीथिंग यू वांट, आप उसे लेके बैठे, अपने आप इस काम को करें, क्वेश्चन को आंसर करें. इस क्वेश्चन को, व्हाट इज माई लाइफ पर्पस, और उसके बाद उसके बारे में जो आपको थॉट्स आ रहे हैं आप लिखें, सेम क्वेश्चन करते हुए, तब तक जब तक आप इस SWOT एनालिसिस को पूरा नहीं कर लें. उसके पास आपके पास सारे आंसर्स नहीं आ जाते जब तक. ओके, सो सेल्फ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की कैटेगरीज क्या हो जाएंगी आपके लिए. आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड जो है, फैमिली सपोर्ट एंड कमिटमेंट्स, टेक्निकल नो हाउ, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, सराउंडिंग्स एंड सोशल एनवायरनमेंट. सो दीज विल बी योर कैटेगरीज फॉर सेल्फ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. सो नाउ कमिंग ऑन टू द that tips that I am going to share with you about the SWOT analysis. So अभी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आप ये क्वेश्चंस का आंसर दें. हाउ डू योर एजुकेशन स्किल्स, टैलेंट, सर्टिफिकेट एंड सोशल कनेक्शंस सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर पीयर्स. आपके एजुकेशन स्किल्स, टैलेंट, सर्टिफिकेट्स, सोशल कनेक्शंस जो हैं वो आपको अलग से
अल्लाह आपके जैसे सेम जो आपके सेम एज के स्टूडेंट्स, आपके सेम एज के लोग हैं, उससे अपार्ट आपको कैसे बनाते हैं? वट वुड योर बॉस ऑफ कोवर्कर अदर से योर स्ट्रेंथ्स आर, दैट आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपके कोवर्कर्स, आपके बॉस या फिर आपकी फैमिली क्या बोलती है? ओके, सो आपके एथिक्स क्या हैं वो, और आपके अचीवमेंट्स, और आप जिनके बारे में आप बहुत प्राउड हैं। अब वीकनेस के बारे में बात करें तो वीकनेसेस आप कैसे करेंगे? वेयर आर योर एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स लैकिंग, कहाँ आपकी ट्रेनिंग एजुकेशन लैक करती है, कहाँ पे आपके फैमिली के लोग कहते हैं कि आप इस चीज़ में लैक कर रहे हैं, आपके नेगेटिव वर्क हैबिट्स क्या हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, आप क्या सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट? सो इसको लेते हुए आप वीकनेसेस चेक कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स चेक करने का। सो अपॉर्चुनिटीज आप क्या चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी वर्क लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन वॉट एरिया इज यू आर ग्रोइंग, आप किस एरिया में आगे बढ़ रहे हैं, है ना? आपने जो एजुकेशन ले रखी है उसके हिसाब से आप किस एरिया में आगे बढ़ पा रहे हैं। ओके, सो सेम वे न्यू टेक्नोलॉजी आपको कैसे हेल्प कर रही है, राइट? जैसे सपोज करिए आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी न्यू ऐप से, किसी नए ऐप से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। आपके सोशल कनेक्शंस कैसे हैं, राइट? थ्रेट्स, नाउ कमिंग ऑन टू द थ्रेट्स, अब आप क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं आपके करियर में, आपके जो आप काम करना चाहते हैं आपके बिजनेस में, उसमें आपका कंपटीशन किसके साथ है, राइट? क्या नए जो जनरेशन आ रही है, क्या जो न्यू जो कमिंग अप दो आपके जूनियर्स हैं वो आपके लिए थ्रेट्स है, या फिर अब योर जॉब और इंडस्ट्री में कैसे चेंज हो रही है, सो आपको ये सब आपकी थ्रेट्स हो जाती हैं। ओके, सो ये आप बिजनेस के लिए, अपने आपके ओन सेल्फ के लिए ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और टिप्स हैं आपको अपना आंसर दिलाने के लिए। आपको सबसे पहले जो आपके मन में आता है आपको वो लिखना है। सो बार बार नहीं सोचना है, बार बार उसको करेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, राइट इट डाउन। मिड पॉइंट पे कोई थॉट्स नहीं छोड़ने हैं, राइट? आधे में छोड़ के उसको छोड़ नहीं देना है। आपको लेजी लगेगा, अनइंटरेस्ट आएगा आपके पास, पर आपकी इनर सर्च को आप गिव अप ना करें। ओके, सो ऐसे थॉट्स, पर्पसेस ढूंढे जो आपके माइंड को एक्यूमुलेट करे, राइट? डाउट्स को, फियर्स को, सबको राइट डाउन करें। ओके, एक्टिविटीज आप जो अच्छी लगती हैं, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, उन सब के बारे में लिखें। फ्रस्ट्रेट नहीं हो कि आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे, एक ब्रेक लेके देखें, उसके बाद आप वापस स्टार्ट कर पाएंगे नई एनर्जी के साथ। डिफरेंट सिटिंग्स देखें आप अपने आंसर्स को बिठाने के लिए। राइटिंग मत रोकें, कोर तक जाएं आंसर के। ओके, सो ऐसा आंसर ढूंढें जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस को इवोक करे, बाहर लाए और आपकी सोल से मैच कर दे। ओके, सो आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसे आप अपने अंदर इनसाइट को सर्च करेंगे, तो बस आपको उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है। आपको मिक्स्ड इमोशंस आएंगे, सेटिस्फैक्शन के, हैप्पीनेस के, सॉरो के। अपने राइट इमोशन को चेक करने के लिए इसको वापस करने की कोशिश करें। अगर आपका फिर वही ट्रूली आंसर है, अगर आप उससे वापस वही आंसर पे आ रहे हैं, तो आपको हैप्पी और रिलैक्स फीलिंग आएगी, तो आप अपना मिशन जो है आपकी लाइफ का उसको सेट कर पाएंगे। जो आंसर आपकी सोल से, हार्ट से ट्रूली कनेक्ट कर सकता है, सो दैट विल बी योर आंसर। अब इसको सम अप आपको कैसे करना है? ओके, सो सम अप में आपको क्या करना है, राइट डाउन करनी है फिर सारी चीज़ें टेबल के अंदर, अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स, सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली नो करनी है। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपको बुरा लगता है। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पॉपुलर है हमें वही पसंद करना है, ऐसा नहीं करिए। आपको जो अच्छा लगे आप उस चीज़ पे जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि अभी ये हॉट चीज़ स्टफ बहुत कूल है, तो उसमें मैं पीछे पड़ता हूँ। नो, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दैट इट इज़ नॉट फॉर यू, देन जस्ट इग्नोर इट। आप अपना टाइम लीजिए अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को डिफाइन करने के लिए। अगर आप अपने इनर सेल्फ से प्यार करने लगेंगे, आप इनर सेल्फ को जानने लगेंगे, उसको फॉलो करने लगेंगे, तो आपके आउटसाइड जो आपके जो इन्वायरमेंट है वो भी आपसे उतना ही सेम टू सेम उसी वे में आपसे भी वो गेट टू नो होगा। आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे लोग भी, आपसे बहुत अच्छे से इंटरेक्शन रख पाएंगे।
तो आपको चेक आउट करना है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको क्या इंपॉर्टेंट डेली लाइफ के क्या शेड्यूल्स हैं, आपका वर्क कैसा है, कितना इंपॉर्टेंट है। उनको छुपाने की बजाय उनको ग्लोरीफाई करें। ओके, हु आर यू, अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे हैं, आप अपने वर्ल्ड के साथ कैसे हैं, अपने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आपकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, आप सब कुछ, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। सो विथ स्वॉट एनालिसिस इट विल बी बेस्ट वर्जन आप बन पाएंगे अपने आप के। ओके, स्वॉट एनालिसिस पीपल को हेल्प करता है ताकि वो अपने बेस्ट वर्जन बन पाए। तो स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद आप समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करने का यही तरीका होता है कि आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं चारों एरियाज में। ऑनेस्टी एक क्रूशियल पार्ट होगा इसमें, नहीं तो आपका एनालिसिस जो है वो मीनिंगफुल रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। एक सिंपल एंड शॉर्ट प्रोसेस है आपके दिमाग को एनहांस करने की। क्रिएटिव मेथड है सेल्फ असेसमेंट का। ओके, सो जहाँ से आपको पता पड़ेगा कि आपका करियर और आपकी लाइफ किधर जानी चाहिए। Okay, so that's all for the today's videos, friends. Keep on the notification button and like, share and subscribe my videos, and see you the next time in the next video. Thank you.